الہ الا اللہ لا الہ اور کیڈا سونا نام رسول اللہ کیڈا سونا نام اور اس کلمے دے حرف نے چار میاں جیویں چار نبی دے یار میاں سانو سبنا دے نال ہے پیار میاں کہ لا الہ الا اللہ کے آج ذکار صاحب اور میاں صاحب کا ڈاکٹر صاحب بڑے شوق سے میاں صاحب کا کلام سنتے تھے جب بھی ہم کلینک میں بیٹھتے تھے تو ایک دو شعر میاں صاحب کے کہ وڈیاں میرا والیا سایاں اے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تی کھولی رحمت دا دروازہ آخری شعر کہ رونق میلے آج گلیاں بھی رونق ڈاکٹر صاحب جتھے بہنے سن کہ رونق میلے گل باتاں ادھر شام سویرے بزرگاں نال بہاراں ہوندیاں بزرگاں باج اندھیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت شرکائے جنازہ آج ہم ایک عظیم شخصیت انتہائی خوبصورت صورت کے مالک اور سیرت کے مالک میں سمجھتا ہوں کہ جس وقار کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے اس کے آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کر سکوں انہوں نے تقریباً 40 سال جو ہے وہ خدمت خلق کی ہے ان کا چڑوئی کے ارد و گرد میں 40 سال تک جو ہے انہوں نے کام کیا ہے اور اچھے انداز سے کام کیا ہے آج کالاڈاب BHU دیکھ لیں چڑوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر دیکھ لیں جو ڈماس BHU دیکھ لیں یہ ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں یہ سب جو ہے ان کی زیر نگرانی جو ہے مکمل ہوئے ہیں ان کی محکمہ میں بے شمار خدمات ہیں آج اس مختصر وقت میں ان کی خدمات کا احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جس انداز سے اور جس وقار کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے یہ انہی کا ہی کارنامہ تھا کہ جس انداز سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا وقت گزارا میں آج پوری انجمن تاجروں کی جانب سے اور بالخصوص کیمسٹ ایسوسی ایشن کا صدر ہونے کی حیثیت سے میں تمام احباب کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ کنبہ قبیلہ کے ساتھ دلی طور پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور ایسا مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام آخری گفتگو تو عزت مآب وسیم رضا صاحب کریں گے میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف صاحب کے 3 گھر تھے ایک گھر تھا ان کا ٹائیں کھوئیرٹا میں دوسرا گھر تھا ان کا چڑھوئی اور تیسرا گھر تھا میرپور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر 3 گھروں میں ہر 3 گھروں کے علاقوں میں ان کی اچھی گواہی اچھے اخلاق اور انتہائی ہمدرد انسان کی گواہی مل رہی ہے اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا فرد ہی شاید ہو جن کو ڈاکٹر عارف صاحب کے رویے سے ان کی گفتگو سے ان کے اخلاق سے کسی کو کوئی شکایت ہو میں چونکہ ہم زیادہ تر ٹائیں سے چڑھوئی سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آئے میرپور سے ہیں تو میں یہ چڑھوئی کے لوگوں کی طرف سے گواہی دیتا ہوں کہ ڈاکٹر
मोहम्मद आरिफ आला अखलाक के मालिक थे, बेहतरीन रवैया था, लोगों के साथ उसने अखलाक से पेश आते थे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस गवाही को कबूल फरमाकर उनकी कब्र, बरज़ख, अशर की मनाजिल को आसान फरमा और उन्हें जन्नत आला मकाम अता फरमा। और लवाकिन, उनके बेटों, उनके पूरे खानदान को, हम भी उस खानदान का हिस्सा है, अल्लाह सब्र अजीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। करीम अमाबाद फ़ौज़बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम शुरकाए जनाजा, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब या मीर अफजल साहब ने हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को जिस अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है, मेरे पास इससे ज्यादा तो कोई अल्फाज नहीं है। यही बात है कि जिस तरह मेरे इन भाइयों ने कहा है, डॉक्टर आरिफ साहब ने अच्छी, साफ और शफाफ तरीके से जो वो जिंदगी बसर की है। एक खूबसूरत अंदाज में इनका रहना, इनका सहना, इनका उठना, इनका बैठना और इनका लिबास, ये खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जो है ये अपनी जिंदगी गुजारी है। और मैं समझता हूं कि ये अपने इखलाक की वजह से आज भी चुनाव में, ये कुछ अरसा से, ये 2-3-4 माह से शायद चुनाई नहीं जा सके, लोग इनकी बड़ी कमी महसूस करते थे और इनके लिए दुआ गो थे कि डॉक्टर साहब की सेहत खराब है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन ये मौत अटल हकीकत है। आज डॉक्टर आरिफ साहब हम में से जा रहे हैं, कल हमारी जो है ये बारी है। मेरी ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर आरिफ साहब को करवट करवट के बदले जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इनके बेटों को, इनके खानदान को, और हम भी उस खानदान में से सबको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उनका भाइयों ने की हैसियत से और जो है ये तमाम अहबाब का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दूर दराज से, कोटली से मैंने बहुत से दोस्त अहबाब, इनकी पैरा मेडिकल एसोसिएशन के वो दोस्त अहबाब देखे हैं, हर जगह से वो इस जनाजे में या वो तशरीफ लाए, बाकी जहां जहां से दूर से तशरीफ लाए मैं दिली तौर पर अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोटली से सरवर क्या नहीं साहब करे ऐसा नो बस्ती बैठे मैं देखे नो। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम अल मौतु तुहफ़तुल मोमिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। शुरकाए नमाज जनाजा, आपने मेरे पेश रो मुकर्ररीन से इस शख्सियत के बारे में जिनका जनाजा अदा करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं, हमारी फैमिली का एक रोशन सितारा और एक खूबसूरत चेहरा और इंतहाई खुलीक और इंतहाई मेहमान नवाज और इंतहाई अवाम के हर दिल अजीज मोहतरमी जनाबे डॉक्टर राजा मोहम्मद आरिफ साहब मरहूम नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आपके जनाजे में हम शरीक हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से आपने गवाहियां सुनी हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे भाई प्रोफेसर फयाज साहब ने, जनाबे राजा अकबर एडवोकेट साहब ने और हमारे जो पैरा मेडिकल एसोसिएशन के दिगर लोग हैं, उन्होंने, मैं भी नमाज जनाजा से कबल आप सबके सामने वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो सही अल बुखारी में मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मरने वालों की खूबियां बयान किया करो। सहाबाए कराम
آقا کریم अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में अर्ज गुजार होते हैं कि सारी कायनात के लिए, सारी इंसानियत के लिए रहमत का ताज पहन कर आने वाली शख्सियत ने ये जो एक जुमला इरशाद फरमाया है, इसके पीछे राज क्या पिनहा है। आका करीम ने फरमाया, जब तुम अपने मरने वालों की खूबियां रूए जमीन पर बयान करते हो, अर्शे बरी का रब अपने फरिश्तों में फरमाता है, फरिश्तों देखो जमीन पर मेरे बंदे इस आने वाले के लिए अच्छी गवाही दे रहे हैं, तो तुम गवाह हो जाओ, मैं रहमान और रहीम अपने बंदे के गुनाह मुआफ करके उसे अपनी रहमत में शामिल फरमा रहा हूं। हजरात गिरामी, डॉक्टर साहब की गवाही हकूकुल इबाद के हवाले से बंदू के साथ मोहब्बत, उल्फत, प्यार, मेहमान नवाजी, रख रखाव, शादी गमी और फिर जिस शोभा के साथ वो वाबस्ता थे, पूरी जिंदगी उन्होंने उसके साथ वफा की। मैं अपने इन भाइयों के साथ, तहसीन साहब के साथ, तस्लीम साहब के साथ और अपने टाई से यहां तक और तमाम कोटली जिला के जहां जहां से हमारे अजीज व अकारब और डॉक्टर साहब के साथ मोहब्बत करने वाले जितने भी अहबाब दूर और नजदीक से तशरीफ लाए हैं, उनके साथ इजहार ताजियत करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे यह गुजारिश करूंगा कि हर एक जुबान गवाही दे रही है। हमारे आजाद कश्मीर के सहाफत में एक मोतबर नाम और हवाला जनाब राजा हबीबुल्लाह साहब यहीं पे खड़े मुझे फरमा रहे थे कि डॉक्टर साहब खुश खिसाल भी थे, खुश निहाल भी थे, वो मेहमान नवाज भी थे और दिलों में उतर जाने वाले थे। डॉक्टर साहब के साथ जिसने एक मर्तबा मुलाकात की, वो हमेशा मुलाकात दोबारा करने के लिए मुश्ताक रहता था। तो मुझे ये ख्याल आया कि जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी सलाम करे। डॉक्टर साहब ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी, ऐसे में कि हर जुबान मरहूम के लिए अच्छी गवाहियां दे रही है। हजरात गिरामी, दुनिया से जाना हर एक को है, मौत लाबुद्दी हकीकत है जिससे न इनकार मुमकिन न फिरार मुमकिन। आका करीम अलैहिस्सलाम के वो अजिल्ला सिहाबा कराम जिन्हें खुलफाए अरबा कहा जाता है, अभी यहाँ कलाम पढ़ा गया, मैं उसी की राह में उस तरफ देख रहा था कि आका करीम के वो पहले खलीफा जिनके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया, लो वुज़िना ईमान अबी बकरिन बे ईमान अहलिल अर्द, फरमाया लोगों अगर रूए जमीन के आले ईमान को तरकड़ी के तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे उस तराजू के पलड़े में हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान को रखा जाए, फरमाया आले ईमान का ईमान कम होगा, अबू बकर का ईमान उन सब से बढ़कर होगा। वो अबू बकर सिद्दीक जो गार के भी यार है, यारे गार भी है और आज यारे मिजार भी है, वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता। वो शख्सियत जिनके बारे में हुजूर ने यह फरमाया कि लोगों मेरे बाद और अंबियाए कराम के बाद रूए जमीन पर सबसे ज्यादा फजीलत वाला अबू बकर सिद्दीक है। वो उस शख्सियत के बारे में मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वो फरमाते काश मैं दरख्त का एक पत्ता होता। और फिर उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें अल्लाह की बारगाह से मुस्तफा ने मांगा था और मेरे आका ने फरमाया लोगों लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला जारी रहता रब्बे जुल जलाल उमर को नबुव्वत अता करता। वो कहते हैं ए उमर काश तुझे तेरी मां ने जन्म न दिया होता। अहवाले कब्र को सामने रखकर हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन वो शख्सियत जिनके बारे में आका करीम ने फरमाया, वक्त नहीं है, दो जुमलों में बात को कंप्लीट कर रहा हूं। आका करीम ने फरमाया लोगों उस्मान वो है जिससे मेरे